شہروانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے. جہاں بیٹھے ہیں شہروانی کی ترتیب کی کتابیں موجود ہیں. برائے مہربانی پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے. خدا تمہارے ساتھ ہو. ہم دعا کریں. اے قادر خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بے چھپا نہیں. اپنے لطف کے الہام سے مندل کے خیالوں کو پا کر تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین. اے قدوس خدا، 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 اے قدوس خدا. سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا پہلا حکم یہی ہے. اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. انہی دو حکم پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اور ہمارے خدا یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی. تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. آج صبح ہم پھر اس لیے خدا کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کی حمد و تعظیم کریں، خدا کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خدا اس چیز کے بدل اور خون میں شریک ہوں. اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں. خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکے. تھوڑی دیر ہم اپنی شخصی خاندانی زندگی پر غور کریں، اپنے رویوں پر غور کریں، موجودہ حالات پر غور کریں اور اپنی ایویلویشن کریں. سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے رسول کے خلاف گناہ کیا ہے. نور کی بجائے ہماری کی چلے. ہم نے اس کا نام لیا ہے لیکن راستے سے باز نہیں رہے. ہم تیری محنت کرتے ہیں. ہم پر ہم کر یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر. اپنے اس کے ذریعے ہمیں پاک کو صاف کر. ہماری ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ میدان زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو. آمین. ہمارے منجی خدا یسوع مسیح کی دعوت کو سنو. اے محنت اٹھانے والوں بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح گنہگار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. قادر خدا ہمارا آسمانی باپ،
جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان کی طرف اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقیم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ آئے ہم کو ایک ساتھ مل کر خداوند کی تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے زبور نمبر 48 Amen.
आमद के दूसरे द्वार में हम दाखिल हो चुके हैं। तैयारी की दिनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, गुजरे वक्त के लिए और आज के दिन के लिए, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, खानदान के लिए, बैरून मुल्क से लोग हैं उनके लिए। ख़वातीन में से कोई भी खातून दुआ में रहनुमाई कर सकती है। चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई कीजिए। लाली बाप दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज किस वक्त के लिए, इस मौका के, इस दिन के लिए खुदाम, इस पाक दिन के लिए खुदाम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने घर में आने का फजल दिया। खुदाम तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदाम जितने जाने यहाँ पे मौजूद हैं, एक एक जान के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सबसे बढ़ के खुदाम तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और खुदाम सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, खुदाम हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए खुदाम तेरा शुक्र करते हैं खुदाम। और खुदाम जिस मकसद के लिए खुदाम तेरे खादम ने कहा, सारी चीज़ों के लिए, हर बात के लिए जो उनके मुँह से निकले अल्लाह, उन सब के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदाम। ऐ खुदाम तो हम सबके साथ हो, हम सबको बड़ी बरकत दे खुदाम और अपने जलाल में और ज़्यादा बढ़ने का फजल दे खुदावन, ताकि हम तेरे नाम को और ज़्यादा खुदावन अच्छे तरीके से ले सके खुदावन। अपने सारे गुनाहों का, बदियों का, खुदावन ऐसे गुनाहों का भी जिनका आज तक इकरार नहीं किया खुदावन, उनका भी इकरार करते हैं कि तू अपने बेटे के वसीले से बख्श दे खुदावन, क्योंकि तूने अपना इकलौता बेटा दुनिया में दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए खुदावन। हमेशा की ज़िंदगी तेरे पास है खुदावन। तू हमारी ज़िंदगी है, तू हमारी ज़िंदगी की रोटी है, तो हमें ज़िंदगी का लंगर है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे आगे झुक जाते हैं, तुझे सिजदा करते हैं और तुझे ही पुकारते हैं, क्योंकि आसमान, ज़मीन और ज़मीन के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं कि खुदावन हम उसे ले, सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु नाम है खुदावन। हम यीशु नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। हम सबको छू और बड़ी बरकत दे, शुरू से लेके आखिर तक हम सब की मदद और हिफाजत का खुदावन। इसी इबादत का सारा खुदावन ऑर्डर कंट्रोल तेरे नाम को देते हैं। सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सारी हमदो तारीफ के लिए, साजों के लिए, आवाज़ों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। वाइज के लिए जो लोग नए वाइज में शामिल हो रहे हैं उनके लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अगर क्वायर और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करे तो मैं वो सामने क्वायर को ले आऊँ, ठीक है, ये जगह दूसरों। इसलिए मैं खुश होता हूँ कि अगर आप में से कोई अपने आप को खिदमत के लिए पेश करे, सन स्कूल की खिदमत है, यूथ की खिदमत है, रफाकत ख़वातीन की खिदमत है, ओहदे के लिए ना है, खिदमत के लिए है। मैं यहाँ तक खिदमत के जरिए आया, मैंने बड़ा काम किया, मैं खुदा के खौफ में रह के ये बात करता हूँ। मैंने अपने हाथों से काम किया, मैंने झाड़ू दिया अपने हाथों से। ऐसे ही अंदाज था। नौजवानों से ये मैं कहना चाहता हूँ, इस खिदमत के लिए अगर आप आना चाहते हैं आपके लिए मौका है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि इस डायसिस के लिए, इन चर्चेस के लिए सिर्फ पसीना नहीं खून भी बहाया। मैं बहुत दफा जख्मी हुआ चर्च बनाते हुए, बिल्डिंग्स बनाते हुए, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक दफ़ा मैं कलाम सुनाने के लिए गया तो किसी ने मेरा ताल्लुक़ कराया कि जी मैं कलाम सुनाने के लिए पादरी महनू को दावत देता हूँ, जिस तरह लाहौर में, पंजाब में शहबाज शरीफ पुल बनाने में, सड़कें बनाने में मशहूर हैं, तो रायगढ़ डायसिस में चर्च बनाने में पादरी महनू को मैं नहीं चाहता इस तरह की मेरे लिए अल्फाज कहे, क्योंकि ये क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन सराय दुर्मिया में जो चर्च है खुदा के फजल से हम उसके वी आर द फाउंडर ऑफ दैट चर्च। जब इस चर्च में खुदा हमें लाया, ये ग्राउंड बहुत नीचे था, पानी पड़ा हुआ था, रोटी डलवा के वो बिल्डिंग बने, वो खुदा के काम है। तो जब बारिश में जब हम गए तो वहाँ खुदा ने हमें इस्तेमाल किया। सेंट्रल कैथीड्रल ऑफ प्रेइंग हैंड्स, वहाँ डिमॉलिश भी वहाँ पे चर्च किया, बनाया भी वहाँ पे। 3 साल लगातार हमारे कपड़ों में मिट्टी होती थी, हमारे सूट में मैंने 3 साल जॉगर ही पहने, बूट नहीं पहने, शौक से बना। सो नौजवानों से कहूँगा कि सरफराजी ऐसे ही मिल जाती, काम करें, खिदमत करें, खिदमत के लिए आए और खुदा का शुक्र अदा करें। आज जिनके क्वायर में नए लोग आए हैं और मिसेस बारबरा फ्रैंक, तो जब मैंने जाकर उन्हें देखा तो फिर मुझे ना याद आई है पुरानी क्वायर।
वो उसमें बूढ़े लोग भी थे, जवान भी थे, लेकिन उन बूढ़ों को भी मैं जवान ही कहता था। तो उनमें से आज एक शख्सियत जो इन दिनों अमेरिका में है, मिसेस ब्यूला शाकर, उनकी खिदमत है इस चर्च में। मैं उनको बुलाऊंगा और मिसेस फ्रैंक से कहूँगा, आज मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो यहाँ से आगे मेरी साइड से आगे, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। सेक्रेटरी साहब, हम आपकी शुक्रगुजार हैं, आप जो लोग हमारे आते हैं उनकी इज्जत। दोनों अभी खड़ी रहे, दुआ बाद में करूँगा। मैं खुदा का खादिम होते हुए ये कहना चाहता हूँ, रफ़ाक़त ख़वातीन से ख़ास तौर पर, ये रफ़ाक़त ख़वातीन की प्रेसिडेंट थी, और जब हमारी खिदमत यहाँ पे आई तो उन्होंने अपने अहदे को छोड़ के दूसरों को मौका दिया। हमारे लोग नहीं छोड़ते खिदमत, वो कहते जब तक मैं जिंदा मुझे रहने दे। एक मॉडल बने। खुदा आसमानी बाप, तेरा खादिम होते हुए अपनी दोनों बहनों के लिए दुआ खैर करता हूँ और मिन्नत करता है खुदा तुझे अपने जलाल के इस्तेमाल करता रहा। अपनी बहन ब्यूला शाकर के लिए, उनके पूरे घराने के लिए दुआ खैर करते हैं, सलामती के साथ में यहाँ लाए। आज भी पर्पल कलर की जो कैंडल है, शमा है, हम इसको रोशन करेंगे। एक ही जलानी, एक ही जलानी है, लेकिन आपने जलाया, ये आप कर दोनों मिलकर जला देंगे। हाँ। चंगे जुबान लोग चलो पकड़ो। ये नीचे कैंडल पड़ी है, इस कैंडल को कैंडल से जला के ना ये जला दें, वो कैंडल से कैंडल से। शाबाश। दोनों के लिए अमन के लिए बड़ा काम करते हैं। मैं तो बड़े सालों से इंटरफेयर पे ये वो, लेकिन जितना अमन के लिए काम करता हूँ उतनी बदअमनी होती है, इतनी बदअमनी। ये माशरा जहाँ मैं और आप रह रहे हैं, ये अब इंसानों का माशरा नहीं रहा, ये हैवानों का है, दरिंदों का है। सियालकोट गोकी में जो वाक़या हुआ, श्रीलंका का बाशिंदा पाकिस्तान की खिदमत के लिए, काम के लिए फैक्ट्री का जनरल मैनेजर, मेहनत करके इंजीनियर बना, फिर यहाँ पे आया। 9 साल उसने पाकिस्तान की खिदमत की। पाकिस्तान ने उसे क्या तोहफा दिया? उसको मारा, उसको घसीटा, उसको नंगा किया, उसको जला दिया। सिर्फ इल्ज़ाम, सच्चा इल्ज़ाम नहीं है। मैं यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ, वो जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो चूंकि हमारा माशरा बिगड़ा हुआ माशरा है, तो वो बंदा डिसिप्लिन वाला था, तो जो नीचे वाले काम करने वाले लोग उसकी मदद है, वो नाराज थे उससे, तो ये उन्हें बहाना मिल गया और ऐसे शख्स को मारा। दरिंदों से ना हैवानों से डर लगता है, अब तो इंसान को छोटी लड़की गली में गुजर रही थी, कुत्ते 3-4 बैठे हुए, वो डर के खड़ी हो गई। कुत्तों ने कहा, गुड़िया गुजर जा, हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं। ये है आजकल हमारा, दरिंदे हैं हम लोग, माशरा बिगड़ा हुआ है, हमें दुआ की जरूरत है। मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ जहाँ पे इसी बात का जिक्र मैं करूँगा। ये मैं आपको बताऊँ, अब मेरे लिए भी दुआ किया करें। जब मैं उस आदमी को देख रहा था जिसको मार रहे थे और घसीट रहे थे, तो मैं समझ रहा था कि पता नहीं ये मेरा जिस्म है, शायद कल को हम में से किसी की बारी आ गई। इसलिए नौजवानों से खास तौर पे कहना चाहता हूँ, अकल से, तमीज के साथ हर चीज को देखें। अब आपको अच्छाई और बुराई का पता है, खतरनाक जो कवानीन यहाँ पे हैं उनका भी पता है। इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबको ये बताऊं कि आप बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये नौजवान हैं, बड़ी दानिशमंदी के साथ खुदा के खौफ में कोई ऐसी चीज नजर आए आप उसे छोड़ दें, देखिए ना उसकी तरफ, हाथ में भी ना पकड़े, सब बात भी ना करें, ईमान में मजबूत रहें। बस
पैदल शेख आप दुआ में रहने करें आज के दिन के लिए, और ख़ासतौर पे हमारे वो अज़ीज़ जो बैरून मुल्क हैं उनके लिए, बच्चों के लिए। खुदाए बुजुर्ग रहीम मेहरबान आसमानी बाप, खुदा तेरी दी हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए जो कि बयान से बाहर है, और ख़ास तौर पर खुदावन तेरा अर्श को छोड़कर ज़मीन पर आने के लिए, इस निजात के इंतज़ाम के लिए, और खुदावन फिर तूने हमारी जिंदगियों में ये खूबसूरत दिन बख्शा कि खुदावन हम इस दिन में शामिल हो सकें। खुदावन बड़ी आज़ी, बड़ी इंतसारी के साथ हाज़िर जमात के लिए तेरे हुजूर से दुआ मांगते हैं कि हमें बरकत दे, हमारी इबादत शुक्रगुजारी को अपने हुजूर में कबूल फरमा। इस हैकल के लिए खुदावन तेरे खादिम के लिए, वायद के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं, और अपने तमाम बच्चों, बुजुर्गों, रिश्तेदारों के लिए जो बैरून मुल्क रहते हैं उनके लिए भी दुआएं खैर मांगते हैं। खुदावन इस मुल्क के लिए जो भी हालात हैं खुदावन वो तेरे सामने हैं, तो अपने लोगों की हिफाजत कर, अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में हमें छुपाए रख, हमें हमेशा शुक्रगुजार दिल से करे रख, हमारी खताओं, गलतियों और गुनाहों को माफ़ फरमा। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। ज़बूर नंबर 126 पहली आयत से छठी आयत, पूरा ज़बूर है, 6 आयतों में मुश्तमिल है। नई बाइबल में सफ़र नंबर 777 777, और पुरानी बाइबल जो आपके सामने पड़ी है 606 606। अगर आप किसी को भी ज़बूर नंबर 126 तिलावत करना चाहे, शुक्र पीछे एक आदमी है जिस अर्ज से बात के ऑर्डर की खिदमत करते हैं, सफाई करते हैं, इजाज़त दिखाकर वो इस कलाम की हिस्से की तिलावत करें। थैंक यू सर। आज का दूसरा फिलिपियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत, पहला बाब, 3री आयत से लेकर 11वीं आयत। फिलिपियों पहला बाब 3री आयत से 11वीं आयत। पुरानी बाइबल जो आपके सामने पड़ी है सफ़र नंबर 199 199, और नई बाइबल में सफ़र नंबर 268 268। फिलिपियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत। कोई लड़की, कोई खतून पढ़ेगी, अपना हाथ खड़ा करेंगे, मुझे खुशी होगी। फिलिपियों पहला बाब 3री आयत से 11वीं आयत। ठीक है बेटा, तो चलें, आपको फिर मौका देंगे। वो बच्ची ने हाथ खड़ा किया, मैं उसको मौका दूंगा। फिर हमें गीत गाएंगे, 372 नंबर गीत है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। अगर कोई इस गीत को उन्हीं अल्फाजों में प्यार से अदायगी करके गाए तो पूरा गाए, नहीं तो सिर्फ 2 आयतें हैं। ठीक है जी, सोचना। जो गीत नंबर 372, तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। ये 372 गीत है, और जो अभी नई गीतों की किताबें आई हैं उनमें इजाफा हुआ है, और अब बहुत सारे गीत उसमें नए शामिल हो गए। और ये जो गीत है ये पादरी हिजकियल सरोश साहब ने लिखा है, तेरी रहमत अबदी है। अगर आप किसी ने उनकी ज़बान से सुना हो गाते हुए तो वो लफ्ज़ों की अदायगी बड़े अच्छे तरीके से करते थे। तो इसलिए हम इस गीत को कलाम से पहले सब मिलकर गाएं। आज का तीसरा दिन मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, 3रा बाब, पहली आयत से 6ठी आयत। पुरानी बाइबल में सफ़ा नंबर 54 जो बाइबल आपके सामने पड़ी है, खोलें जरूर। सफ़ा नंबर 54। नई बाइबल में सफ़ा नंबर 83। और ये हवाला खुदा के खादिम पादरी नेल्सन शहजाद पढ़ेंगे। 3रा बाब, पहली आयत से 6ठी आयत।
मुकद्दस लूका का इंजीली बयान नई बाइबल में सफ़र नंबर 83, पुरानी बाइबल में सफ़र नंबर 54 और भी नेल्सन शहजाद कलाम की तिलावत करेंगे। कलाम की तिलावत करने के बाद फिर आप ऊपर आ जाएंगे। ये तीनों हवाले मेरी और आपकी नसीहत के अपने हाथ में शादी की जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, जब खुदा सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदा ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। आए खुदावन, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला, जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, और जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूरे लिए हुए शादमान लौटेगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जना हम सब के बारे से बरकत हो। आज मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ और हर एक दुआ में तुम्हारे लिए करता हूँ। हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दुआस करता हूँ, इसलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। चुनाचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जो अब वही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सब का मुश्ताक हूँ, और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा होती जाए, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ, और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए। आमीन। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बड़ा। आमीन। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 3 बाब पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। तिबियोस कैसर की हुकूमत के 15वें वर्ष, जब बेलतुस पलातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदिस गलील का, और उसका भाई फिलिप्पस अतूरिया और तुर्कोनितुस का, और लसानियास लेने का हाकिम था, और हन्ना और कैफा सरदार काहिन थे। उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना पर नाज़िल हुआ, और वो यरदन के सारे गिरदोनवा में जाकर गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करने लगा। जैसा यशायाह नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावन की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर वर्ष खुदा की निजात देखेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। सब देखी कलम देखी चीज़ों का खालिक है और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलम से बेहतर, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, रूह से रूह, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू में नहीं बदल के मौजूद,
उसका और बाप का एक ही जोड़ है, उसके वसीला से कुछ जिंदगी बनी, वो हम आदमी के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया, और उसकी कुदरत से हमारी बनी जिससे मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और महसूस बिना कुछ क्या है हमारे लिए तस्वीर हुआ, उसने उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन बाद नबियों के बावजूद जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की जगह पर बैठा है। वो जलाल के साथ इस दो और बदबू की अदालत के लिए खड़ा है, उसकी सल्तनत खत्म होगी और मैं ईमान करता हूं रूह की तस्वीर वो खुदावंद और नसीब बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से साथ है, उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश का नसीब होती है। वो नबी की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम सूरी की शक्ल पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतजार करता हूँ। आमीन। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त हमें तूने मौका बख्शा कि हम तेरी आवाज़ को सुने और तेरे इस छोटे बच्चे यूहन्नान को तेरे गले में शामिल करें। ऐ बाप, तो अपने खादिम के मुंह में भी अपना कलाम दे ताकि आज का कलाम हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। यूहन्नान, हम खुदा के खादिम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम से तेरे माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि तू खुदावंद यीशु मसीह का हो गया है। खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद तेरी हिफाजत निगहबानी करे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझे बरकत दे, और जिस तरह तू तो कामत में बढ़े खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में बढ़े। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। आए हम सब तालियां बजाकर जिस तरह खुद कामत में बढ़े खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में बढ़े, और हम इसी ईमान के साथ इसे इसके वालिदैन की सुपुर्द करते हैं कि आप इसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक है। तू जो भला है, जिसके वादे ना सिर्फ हमसे हैं बल्कि हमारी औलाद से भी हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा रूह कुद्स यूहन्नान को इस तौर से तकवीत दे कि ये बच्चा खुदावंद यीशु मसीह में जान पकड़कर तेरी मोहब्बत में बढ़े, साल ब साल उसकी रहनुमाई कर, और बख्श दे कि वो वक्त है जब ये बच्चा अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके तेरे बेटे यीशु को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके पाक मेज के पास आए, इसमें शरीक हो और बड़ी दलेरी के साथ और के सामने मसीह का इकरार करे। अब आप जिसके इकलौते हकीकी बेटे ने नासरत के खानदान में परवरिश पाई, हम इस बच्चे के घर और वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, बख्श दे कि इनका घर हमेशा मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान से मामूर रहे, और इसके वालिदैन हमेशा इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की फिक्र करें। बख्श दे कि ये अच्छी तरबियत, अच्छे नमूने से इसे खुदावंद यीशु मसीह के इरफान और फरमाबरदारी में इसकी परवरिश करें, ताकि ये बड़ा होकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और इकरार देने का वसीला ठहरे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। सलामती से जाए, आप सबको मुबारक हो। गुड मॉर्निंग। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि मैं आज की तिलावत के मुताबिक, आज के हवाले के मुताबिक बात करूं, मैं बेहद खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो बार बार ये मौके बख्शता है कि मुझे अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ मैं भाई साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। भाई साहब भी जो अभी थोड़ी देर पहले भी वो बात करते हैं ना सेकंड लाइन की, ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो विश रखते हैं उस पर पूरे भी उतरते हैं। आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ, सबसे पिछले बेंच पर बैठने वाला वो शख्स हूँ जो बिल्कुल चर्च जब खत्म होने वाला होता था तो तब आता था, सिर्फ 5 मिनट के लिए, और आज मैं कहाँ पर हूँ ये आप लोगों के सामने है। आप भी ये खुश नसीबी हासिल कर सकते हैं। ये मेरे अकेले के लिए नहीं है,
भाई साहब अक्सर दावत देते हैं, जैसे अल्टर बॉय के लिए ज़रूरत है, तो ये हमने कोशिश करनी है, ये हमने जुर्त करनी है कि हम अपने आप को खुदा के लिए पेश करें, तब जाकर खुदा हमें बुलंदियों पर लेकर जाएगा। अगर हम बैठे ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा। आज का जो हवाला अभी थोड़ी देर पहले मैंने तिलावत किया है, वो भी इसी बात पर है। वो जो घाटियां हैं, वो जो नामवार रास्ते हैं, वो जो टीले हैं, वो जो हमारी जिंदगियों के आगे खड़े हैं, वो कैसे गिरेंगे? क्या दोबारा यूहन्ना आएगा? नहीं, अब नहीं आएगा। अब जो करना है, ये पाक कलाम हमारे पास है, रूह कुद्स की रहनुमाई है, खुदा के कादम हमारे साथ होते हैं। हमें खुद से, भाई साहब ने सुबह ही जब इबादत शुरू हुई तो कहा हमें अपने आप को इवेल्युएट करना है, अपना एहतसाब करना है। मुझे खुशी है कि जब हमने ये एडवेंट का सीजन 1 दिसंबर को शुरू किया, संडे स्कूल की टीचर ने बड़ी मेहनत से बच्चों को तैयार कराया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बच्चों के वालिदैन के लिए, सेक्रेटरी साहब के लिए, जिनके ताउन से ये सब कुछ होता है। अगर हम एक दूसरे से ताउन नहीं करेंगे तो शायद हमारे आबादी प्रोग्रामों में वो रूहानियत ना हो, हमें वो तसल्ली ना मिल सके। हमारा इकट्ठा होना, हमारा इस तरह की रफाकत रखना, ये सब खुदा की मर्जी होती है, खुदा का एक इंतजाम होता है जिसके वसीला से ये सब कुछ मार्ग वजूद में आता है। ये क्वाइल बैठी है, ये भी खुदा का इंतजाम है, इसमें लोग बढ़ते हैं, कोई आता है कोई जाता है, तो ये सारी खुदा की पाक मर्जी है। कभी हम यहाँ पर होते हैं तो कभी हम किसी और जगह पर खुदा की खिदमत के लिए बुलाए जाते हैं। एडवेंट जिसको लोग, बहुत सारे लोग शायद अभी इतना मानते नहीं है, बहुत सारे लोग इसकी नफी करते हैं, इसी तरह वो 25 दिसंबर की भी नफी करते हैं और कहते हैं कि बाइबल में तो है ही नहीं, दिखाए हमें 25 दिसंबर हम जो मनाते हैं ये किधर लिखा है, खुदा का कलाम तो कहते नहीं है, तो फिर हम क्यों मनाते हैं? लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि खुदा के बहुत सारे ऐसे सूरमा हैं जो 25 दिसंबर को साबित करके देते हैं कि वाकया ही में खुदावंद यीशु मसीह ने उस दिन तजस्सुम हुआ। लेकिन मैं इसको बड़े सादा अंदाज में बयान करता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखिए, साल में किसी ना किसी दिन तो खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए, किसी महीने में आए तो सही, उनकी वलादत तो हुई, वो तजस्सुम तो हुए। तो अगर हम सब मिलकर किसी एक दिन उनकी खुशी को मना लेते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं, इसमें बाइबल कब मना करती है? बाइबल कब कहती है कि हम उसका इनकार करें? ये तो हमारे लिए ही फायदेमंद है। देखें, जिस वक्त क्रिसमस मनाया जाता है, अरबों खरबों के बिजनेस होते हैं। ये किसकी वजह से है? यीशु मसीह की वजह से। लोगों को कितनी रफाकतें रखने का मौका मिलता है क्रिसमस के वसीले से, कितने मसीही आबादी प्रोग्राम, जब वो देखें पूरा दिसंबर हमारा चलेगा, आबादी प्रोग्रामों में कहीं प्ले हो रहा होगा, कहीं मौसीकी का प्रोग्राम हो रहा होगा, कहीं किसी तरह से इसको पेश किया जा रहा होगा, बल्कि अक्टूबर और नवंबर में ही शुरू हो जाता है जो कन्वेंशन होती है। सो ये वो सारी चीजें हैं जो मिलकर हमें खुदावंद की उस बात के लिए तैयार करने का मौका बनता है जो इस के साथ, एडवेंट के साथ जुड़ता है। हम अक्सर कहते हैं कि एडवेंट सीजन हमारा शुरू हो गया है, एडवेंट का आज दूसरा इतवार है। तो एडवेंट है क्या? इसको, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये हम क्यों इसको मनाते हैं? एडवेंट कहाँ से आया? ये एडवेंट क्रिसमस जहाँ जब से स्टार्ट हुआ है, ये उसके साथ ही शुरू था, लेकिन हमारे पास देर से पहुंचा है। लातीनी जुबान में इसको एडवेंटस कहते हैं, जिसका मतलब है आमद, और यूनानी जुबान में पेरोसिया, उसका मतलब भी आमद है। अब ये आमद कौन सी है? एक वो आमद जो खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आ चुके, जमीनी दौर उन्होंने गुजारा, एक उसके लोग मुंतजर थे, उसकी आमद की बात है, और दूसरा अब वो जो जलाली तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने आना है। ये इन दोनों आमदों को पेश करने के लिए एक इस्तिलाह है जिसको हम कहते हैं एडवेंट का सीजन। और ये सिर्फ क्रिसमस के साथ ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन
हर घड़ी हर पल हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयारी होनी चाहिए। हमने इसको सिर्फ क्रिसमस की याद तक रखा है, जो कि कहीं हद तक ठीक नहीं है। हमारा हर माह, हर साल, हर दिन, हर घड़ी खुदावंद यीशु मसीह की उस जलाली आमद के लिए तैयारी का दिन होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात को के लिए अपने आप को हमेशा समझते हैं कि बस क्रिसमस के साथ ही हमने इसको करना है, जबकि ये ऐसी बात नहीं है। हमें हर रोज हर दिन इसका इस्तेमाल करना है ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए बड़े और तरक्की करें। और इसमें खास बात यह है कि एडवेंट का आगाज जागने और होशियार रहने के बुलावे से है। जागने और होशियार रहने के बुलावे से है, जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस मत्ती की इंजील, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। दूसरी आयत है मरकस की इंजील में से, खबरदार जागते और दुआ करते रहो। फिर है बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। जागने से मुराद और होशियार रहने से मुराद है कि हम गफलत में ना पाए जाएं, बल्कि तैयारी की हालत में। हमें हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह की जलाली आमद के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अभी जो इंजील का हिस्सा पढ़ा गया, उसमें भी मुकद्दस यूहन्ना ने लोगों को उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार किया था। लोगों को उनके गुनाहों पर बताया था कि तुम किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हो। अगर हम इसका बगौर पूरे चैप्टर का बगौर मुताला करें तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें नजर आएंगी। और इसको जब मुकद्दस लूका ने लिखा तो उसने ठीक ठीक दरियाफ्त करके, जैसे हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं कि उसने ठीक ठीक दरियाफ्त करके इसको लिखा कि उस वक्त हालात कैसे थे। क्योंकि जब ये मुकद्दस लूका की इंजील लिखी गई तो खुदावंद यीशु मसीह के जाने के 70 या 80 साल बाद ये लिखी गई। और जहाँ पर वो जिक्र करता है कि जो उसका साल था, तिबिरियस कैसर था, वो 15वां साल था। तो खुदावंद यीशु मसीह के 70-80 साल के बाद बहुत सारे लोग उसको मिले होंगे। मुमकिन है, बल्कि बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि जब मुकद्दस लूका इस इंजील को लिखता था तो उसने मुकद्दस मरियम से भी मुलाकात की होगी, मुकद्दस यूहन्ना से मुलाकात की होगी, और बहुत सारे रसूलों के तो साथ रहता ही था। और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मिला होगा जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा होगा, जिन्होंने उसे सुना होगा, जिन्होंने उसके मौजूदात देखे होंगे। इसलिए वो उन वर्षों की और उन जमाने की भी बात करता है। अब उस वक्त हालात कैसे थे, उसने यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से उन लोगों की निशानदेही की है जो मजहबी और सियासी लीडर थे। अगर हम पहले पैराग्राफ में जाए, पहली आयत से लेकर 30 आयत तक, तो मजहबी और सियासी लीडरों के बाकायदा नाम लिखे हैं। जो सियासी लीडर हैं वो 5 लोग हैं और उनकी हुकूमत है। और जो मजहबी लोग हैं वो 2 सरदार कहेंगे, हन्ना और कैफा। जबकि खुदा का हुक्म क्या है? खुदा का हुक्म ये था कि 1 सरदार कायम होगा, लेकिन वहां पर 2-2 सरदार कायम थे। इसलिए जब खुदा को अपने लोगों से बात करनी पड़ी, खुदा ने जब देखा कि अब मेरा बेटे का वक्त आने वाला है, तो उसने क्या किया? उसने इन अजीम लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि ये उस वक्त के उस दौर के बड़े अजीम लोग गिने जाते थे। लोग इनको ग्रेट पर्सन कहते थे। लोग इनके साथ वो सब कुछ इसी तरह करते थे जैसे बादशाहों के साथ किया जाता है, और वो इनको बड़ी इज्जत देते थे। लेकिन खुदा ऐसे लोगों को खुदा ने रिजेक्ट किया, क्योंकि ये बेईमान थे, क्योंकि ये जालिम थे, ये ईमानदार नहीं थे। खुद इसलिए खुदा ने फिर बियाबान से अपने बंदा जकरिया के बेटा यूहन्ना को चुना और उसको पैगाम दिया। और लिखा है वो कहाँ गया? वो यरदन के सारे गिरदोरवा में जाकर गुनाहों के माफी के लिए तौबा की बपतिस्मे की मुनादी करता था। आज हमारे लिए क्या दिन? आज हम अपने आप को किस तरह से फलदार जिंदगी बना सकते हैं? किस तरह से हम खुदा के अजीज हो सकते हैं? किस तरह से हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब भी खुदा यीशु मसीह का वो दिन आए
जब सारे लोग, जैसे लिखा है यहाँ पर, हर बशर खुदा की निजात देखेगा, हम किस तरह से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं और इसे कंप्लीट रख सकते हैं। ये सिर्फ क्रिसमस के मौके पर ही नहीं है, बल्कि हर दिन, हर घड़ी, हर पल, क्योंकि उसके दिन का कोई पता नहीं। साफ लिखा है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आएगा। सो हमारे आगे क्या है, हमें करना क्या है? सबसे पहली बात, खुदावन के लिए राह तैयार करनी। खुदावन आने वाला है, ऐसे ही है जैसे कोई बादशाह आने वाला है। जैसे अक्सर जब बिशप साहब का विजिट होता है तो हम किस तरह से गली को डेकोरेट करते हैं, जो वहाँ पर ठीक नहीं होती है, चीजें ठीक की जाती है, चूना लगाया जाता है, तैयारियां की जाती हैं। अभी क्रिसमस के मौके पर हम बहुत सारी तैयारियां करने को है कि जैसे हमारा दूल्हा, जैसे हमारा बादशाह आने को है। ये ठीक उसी तरह ही हमें इसको हर रोज अपनी जिंदगी में लेना है कि हमने उसके लिए अपने दिल की राह तैयार करना है। आज खुदावंद कहाँ पे उतरता है? आज वो हैकल नहीं है जहां पर कौम बनी इस्राइल ने उसका जलाल देखा था। आज वो हैकल हम हैं। मुकद्दस पौलुस क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, तुम घर हो? अब वो हमारे दिल में आता है। हमें अपने दिल को उसके लिए तैयार करना है, हमें अपनी समझ को देखना है, हमें अपनी डायरेक्शन को देखना है कि मैं किस राह पर हूँ। मैं जिसके पीछे हूँ, मैं गैर कौमों के पीछे हूँ, या मैं ऐसे लोगों के पीछे हूँ जो दगा देते हैं, जो झूठ बोलते हैं, या मैं खुदावंद के कलाम के मुताबिक हूँ। ये पहली बात है। अगली बात, हर घाटी भर दी जाए। रास्ते सीधे होने के बाद हर घाटी, हमारे सामने, हमारे रिश्तेदारों के दरमियान जो गड़े हमने खोद रखे हैं, जो रुकावटें हमने कायम कर रखी हैं, उन गड़ों को हमने भरना है। वो कैसे भरेंगे? जब तक हम अपने दिल को साफ नहीं करेंगे। हम अपने अंदर से वो सारी रुकावटें, वो सारी नफरतें, वो सारी कुदूरतें, वो सारी कशीनियां नहीं निकालेंगे, तब तक ये घाटियां भरने वाली नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो काम करना था वो आगे करके जो कुछ हमें देना था देके चले गए। अब वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। दोबारा जब उसकी जलाली आमद होनी है तो हमने अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। हमारे पास मदद के लिए रूह कुद्स है, हमारे पास मदद के लिए पाक कलाम है, हमारे पास मदद के लिए बहुत सारे आज भी खुदा के खादम मौजूद है जो हमें आगाह करेंगे कि हमें किस तौर से अपनी कमजोरी को दूर करना है। फिर पहाड़ और टीले हमारे जिंदगी में, हमारे सामने मुश्किलात है, परेशानी है, मुसीबतें हैं, ये है बड़े पहाड़। ये है जो इब्लीस खड़े करता है। सबसे आज बड़ा पहाड़ है मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। बच्चे जान ही नहीं छोड़ते। वो मैं हैरान हूं, मैं मतलब इसको बड़ा पर्सनली तौर पर देख रहा हूं। अगर बच्चे से कहा जाए ना कि अपना मोबाइल थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ करके रख दो, कहता नहीं, सॉरी, साफ कर दो। और ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है अपने बच्चों की जिंदगियों को बचाने के लिए। हम दुआ को हैं, हम अपने बच्चों के लिए, हम दूसरे बच्चों के लिए, तमाम मसीही बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए हम दुआ को हैं कि खुदा इब्लीस के इस बड़े हथकंडे से हमारी नस्ल को महफूज करे। बच्चे बेकार होते जा रहे हैं, उनमें देखे कोई ताकत ही नहीं बच रही है। सारी रात लेटे रहना, सुबह देर से उठना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं, पेरेंट्स की तरफ तवज्जो नहीं, अपनी किसी जिम्मेदारी का ख्याल नहीं। तो कैसे हम खुदा के साथ चले? कैसे हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में टाइम देंगे? मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, आज हमें जरूरत है कि खुदा का कलाम हमारे अंदर इतना ज्यादा होना चाहिए, इतना ज्यादा होना चाहिए कि इब्लीस जब आए तो वो देख के हैरान हो जाए कि मैं किस बंदे के सामने चला गया हूँ। आप देखें हमारे इर्द गिर्द कुरान पाक हिफ्ज़ किया जाता है, तो क्या हमारी इंजील उससे बहुत बड़ी उठी थी? वो भी 16 बाब है मरकज की इंजील के, जुबानी याद किए जा सकते हैं, हमारे बच्चे याद कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ना हमने कभी कोशिश की है, ना हमारे बुजुर्गों ने कभी इसको हिफ्ज़ करने की कोशिश की थी, ना आज हमारे बच्चे करते हैं। मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुद भी कोशिश करें, अपनी औलाद को सिखाएं, उनसे सुने बैठ कर रोज कुछ 2-2 आयतें, 4-4 आयतें ही रोज की सीखेंगे, महीने में, 2 महीने में, 3
महीने में देखें उनके पास इंजील का कितना बड़ा खजाना इकट्ठा होता है। तब जाकर हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं, तब जाकर हमारे बच्चे दूसरी जगहों पर कलाम की बात कर सकते हैं। जब उनके पास कलाम होगा तो बात करेंगे, कलाम ही नहीं होगा तो किसी के साथ बात क्या करेंगे। इस तरह तो जाकर मैं आसानी से हमें कम कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे अंदर कुछ नहीं होता, हमें पता तो नहीं होता, हमारे पास कोई ऐसी दलील नहीं होती। तो प्लीज ये जो बड़े पहाड़ हैं, ये जो बड़े टीले हैं, इनको हमने खुद कलाम के वसीला से गिराना है, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की जलाली आमद के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी कर सकें। जो टेढ़े हैं, मुतकब्बर, अपने आप को बड़ा समझने वाले, टेढ़ी चालें चलने वाले, मतलब वो समझते मैं ही सब कुछ हूँ, बड़ा समझने वाले, जो टेढ़े हैं, सीधा जो नीचा है, हमवारा, ये देखिए ऊंचे नीचे लोग दुनिया में आज भी मौजूद है, उस वक्त भी थे। खुदावंद यीशु मसीह ने जब जब किसी तमसील में बात की, या खुदा ने जहां जहां पर तमसील में बात की, तो उस वक्त के वो लोग वहां पर मौजूद होते थे, वो काम वहां पर हो रहे होते थे। शायद आज भी खुदा आप लोगों से, हमसे, मुझसे भी, मैंने जब इसके ऊपर गौर किया, मतलब ये बरसों से हम इन्हीं मौकों पर पढ़ते हैं, कभी गौर नहीं किया था। ठीक है, बियाबान करने वाले की बात आती है, पता था मुकद्दस यूहन्ना की बात होती है, वो खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले लोगों को ये बातें कहता था। लेकिन क्यों कहता था? क्योंकि लोग उस वक्त भी बंजर थे, बेरौनक थे। बियाबान इस्राएल को उद्धार कर रहा है, खुदा अपने लोगों को ये ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मौका बनाता है कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाए। आज भी, क्योंकि हम इसको कहते हैं खुदा का ये जिंदा कलाम है, आज भी ये हमारे लिए उतना ही चैलेंज है जितना उस वक्त मुकद्दस यूहन्ना के लिए था। उस वक्त के लोग गुनाह में थे, लोग परेशानियों में थे, लोग उलझनों में थे, मुसीबतों में थे। आज भी हमारे सामने, आप अपने इर्द गिर्द देख लें, हम अपनी कलीसिया में देख सकते हैं, हम अपनी डायसिस में देख सकते हैं, अपने घरानों में देख सकते हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वजह है इब्लीस। हमने उसका मुकाबला करना है और करना ही करना है। अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं, उसका मुकाबला करने के लिए पाक कलाम हमारे पास एक तलवार है, इस तलवार का इस्तेमाल करना है। और ये सारी चीजें जो ऊपर नीचे हैं, जो टेढ़ी चुची हैं, जो हमारी जिंदगी जिस तरह से चल रही है, हमने अपनी जिंदगी को खुदा की उस जलाली आमद के लिए तैयार करके दिखाना है, तब हर बशर खुदा की नजात को देखेंगे। सो आज मैं आप लोगों से यही इल्तिमास करना चाहता हूँ इतने टाइम में कि इस पूरे चैप्टर को आगे देखें। मुकद्दस यूहन्ना ने उन लोगों की उन बातों को भी जवाब दिया है। उन्होंने पूछा है फिर हम क्या करें, पुलिस वालों ने अलग से पूछा है, दूसरे लोगों ने अलग से पूछा है, और उसने अखलाकी बातें भी लोगों को बताई। आज हमारे अंदर इखलाकियात की भी कमी है, आज हमारे अंदर रूहानियात की भी कमी है, आज हमारे अंदर और बहुत सारी ऐसी बातों की कमजोरियां हैं। हमें इन सब बातों को अपने दिल में खुद देखना है, खुद चेक करना है, खुद एहतसाब अपना करना है, ताकि हम उसकी जलाली आमद के लिए सिर्फ क्रिसमस पर नहीं बल्कि हर दिन के लिए तैयार रह सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। शाबाश पादी साहब, थैंक यू। मैं चाहता हूं कि जो जवान खादिम आ रहे हैं वो इस खिदमत को आसान तरीके से अंजाम देते रहे। आए हम शुक्रगुजारी करें, अपने हदिये नजराने और शुक्रगुजारियाँ खुदा की गुजराने के ज़बूर नंबर, ये ज़बूर सिर्फ हदिये के लिए नहीं है मुकर्रर, ये सिर्फ ना हम लोगों ने वैसे ही इसको मुकर्रर कर दिया, रहेगा नाम सदा की कदम रहेगा जब का, ठीक है। ये सिर्फ हदिये के लिए नहीं है, ये शुक्रगुजारी का ज़बूर आए हम गाएं और इसी के दौरान अपने हदिये
अदा करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदिये गुजराने, शुक्रगुजारियों तेरे जुल्म गुजराने अपना हाथ बढ़ा। हम सबको भी इन हदियों को, मनाजातों को, दरख्वास्तों को, शुक्रगुजारी को अपने ज़िल कबूल फरमा, देने वालों को बरकत दे, इन सब के मिसाइल में वसत दे, रोटी पानी का बरकत डाल, इस सदी की तकदीस का तेरे जलाल के इस्तेमाल किया जाए खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमाई हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर, यीशु अपने रूह के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैगी की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु की रूह में बाप के पास हम सबकी रसाई होती है। खुदा तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मतलब और अजली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, टाइम्स ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, सेंट जॉर्ज की सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और कुल आसमानी औरों के साथ मिलकर हम तेरे जिन नाम की हम तस्दीक करते हैं और हम हमेशा तेरी सराइश करते हैं। कदूस 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 खुदावंद प्रभात आसमान और ज़मीन के जलाल से ममनून है। ऐ खुदावंद हमारे इलाही मुबारक है वो खुदावंद के नाम से आया है, हमारा नाम है हमारे पाला का वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू है आसमानी बाप,